آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن ان آور بلڈ. بلڈ کے اندر آکسیجن ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیسے جاتی ہے، یا ہم ایٹماسفیئر سے آکسیجن لے کر ہمارے بلڈ کے تھرو کس طرح اس کو اپنے ٹیشوز تک پہنچاتے ہیں. بہت آسان سا لیکچر ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو آکسیجن ہم لے لیتے ہیں اس میں 97 سے 98% یہ تھرو ایک گلوبولر پروٹین ہے جو کہ پگمنٹ کنٹیننگ ہے، جس کا نام ہے ہیموگلوبن. آج اس کا اسٹرکچر بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کا جو یہ فنکشن ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ 97% یا 98% آکسیجن کیرنگ کا کام کس طرح کرتا ہے. میرے خیال میں یہ اگر نہ ہو تو بلڈ کے اندر یہ بہت سلولی جائے گا آکسیجن، تو آکسیجن کا لے جانے کا جو کیپیسٹی ہے 75 ٹائم یہ زیادہ کرتے ہیں ہیموگلوبن. ساتھ ساتھ 2-3% جو ہے ہمارے بلوچستان بک کے اکارڈنگ، کیونکہ بیسٹ بکس بھی ہمارے بلوچستان بورڈز کے ہیں، 2 سے 3% ڈیزولو فارم میں جاتے ہیں. ادھر پلازما کے اندر ڈفرینٹ پروٹینز ہیں ان کے اندر جاتے ہیں، یا ڈفرینٹ اور مالیکیولز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے جاتے ہیں. اصل میں 97 سے 98% تھرو ہیموگلوبن جاتی ہے ہمارے آکسیجن. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ہیموگلوبن کا جو پرسنٹیج میں نے بتایا ہے، یا یہاں پر پرسنٹیج آف آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی بتایا ہے، یا ڈیزولو فارم کا، یہ ہر بک میں یا ہر بورڈ کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین بکس یا بہترین جو سٹینڈرڈ ہے وہ بلوچستان بکس میں لکھا ہے، وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو وہاں سے پھر وہ جو آکسیجن ہے وہ ٹیشو تک پہنچانا یا ہمارے RBCs کا کام ہے یا بلڈ کا کام ہے، وہاں پر دے دینا کس طرح، وہ ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم پڑھتے ہیں. لیکن باقاعدہ یہ پروسیس سمجھنے سے پہلے ہمیں ہیموگلوبن کا سٹرکچر پڑھنا ہوگا کہ ہیموگلوبن ہے کیا، یہ ایک RBC ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر ڈھیر سارے RBCs ہے، صحیح ہے. یہ ایک RBC ہے ریڈ کلر کا، اس کے اندر 90% یا 90+% جو اندر کا سٹرکچر ہے وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے، وہ ہیموگلوبن سے مل کر بنا ہے. ایک ہیموگلوبن 4 پولی پیپٹائڈ چین سے بنا ہے، ایک پولی پیپٹائڈ چین یہ، ایک پولی پیپٹائڈ چین یہ، ایک پولی پیپٹائڈ چین یہ، ایک پولی پیپٹائڈ چین یہ. 2 الفا چینز ہے جو کہ ایک چین 141 امینو ایسڈ سے بنا ہے، تو 141 ہم ادھر پلس کرتے ہیں. 2 بیٹا چین ہیں، ایک بیٹا چین 146 امینو ایسڈ سے، دوسرا بیٹا چین 146 امینو ایسڈ سے. ٹوٹل میرے خیال میں 574 امینو ایسڈز مل جاتے ہیں، ایک گلوبولر پروٹین واٹر سالوبل پروٹین بنا لیتا ہے. یہ 4 جو یہاں پر پولی پیپٹائڈ چینز ہے، ہر چین کے ساتھ ایک پگمنٹ مالیکیول اٹیچڈ ہے. ہیم کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو یہ سٹرکچر نظر آئے، یہ فائرول ہے، یہ فائرول ہے، یہ فائرول ہے، یہ فائرول ہے، یہ فائرول ہے. فائرول کا مطلب کیا ہے؟ فائرول کا مطلب ہے 4 کاربن کنٹیننگ رنگ، صحیح، ادھر نائٹروجن پھر 4 کاربن کے ساتھ. اچھا، 4 فائرول جب آپس میں مل جاتے ہیں، ایک فائرول ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، اور اس کے ساتھ اگر 4 میتھائل گروپس اٹیچڈ ہو، اس کے کاربن نمبر 3 یا 1 یا 2 کے ساتھ، اکثر 3 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ بناتا ہے پورفائرن یا پورفن. اس کے ساتھ جو سینٹر میں اگر ہم ایک آئرن فیرس کے فارم میں، اس نے 2 آکسیجن دیے ہیں، دیکھو 2 پلس، یا کہیں پر آپ کو اس طرح بھی نظر آئے گا، صحیح. یہ فیرس کے فارم میں ہے آئرن، یہ اس کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس کو ہم نام دیں گے، کیا نام دیں گے؟ اس کو ہم ہیم کا نام دیں گے. ہیم کا سپیلنگ یہ بھی ہے کچھ بکس کے اندر، یہ بھی آپ کو ملے گا. پورفن یا پورفائرن مطلب جب اس کے اندر کیا نام ہے، آئرن جب آ جائے اور اس کے ساتھ میتھائل بھی ہو تو پورفن، اگر آئرن نہ ہو اور میتھائل گروپس ہو تو اس کو پورفائرن کہتے ہیں. اب جب کہ آئرن اس کے اندر آ گیا، اس کو ہم ہیم کہتے ہیں، باقاعدہ اس کا نام ہے ہیم. ہیم کیا ہے؟ ایک پگمنٹ مالیکیول ہے. پگمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے کیا نام ہے، ہیموگلوبن پروٹین جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ پگمنٹس ہے، یا وہ کلر پگمنٹس ہے، یا وہ جو ہے اس کے اندر جس طرح مائیوگلوبن کے اندر ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ہے، یا دوسرے مالیکیول جو ذرا ہیموسیانن ہے، یہ کلر پگمنٹس ہے. یہ اسی وجہ سے تو ہمارا بلڈ ریڈ بھی دکھتے ہیں. یہ ایک ہیم، ایک پولی پیپٹائڈ چین کے ساتھ، دوسرا الگ ہیم اس کے ساتھ اٹیچ، تیسرے کے ساتھ الگ، چوتھے کے ساتھ الگ،
4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इस तरह, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके साथ अलग हीम, इसके साथ अलग हीम, इसके साथ अलग हीम, इसके साथ अलग हीम अटैच्ड है। हर एक के अंदर आयरन भी है फेरस के फॉर्म में। तो अब क्या होएगा, ऑक्सीजन आकर इसके साथ बासानी लूजली अटैच हो सकते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स लूजली अटैच हो जाते हैं। वजह क्या है, क्योंकि अगर ये चाहे तो ये आसानी से लूज भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस किधर होएगा, ये प्रोसेस इधर मैं आपको तफसील के साथ समझाता हूँ। सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपने नाम सुना होगा कि फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर भी आपने नाम सुना होगा। आम तौर पर जो टोटल गैसेस है जिसके हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 760 है। इसमें 160 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है यानी ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है 160 है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, यानी ये जो 760 है इसमें डिफरेंट गैसेस आते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें नोबल गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं, उन सब का मिलकर ये प्रेशर है। लेकिन 160 पार्शियल प्रेशर किसका है, सिर्फ ऑक्सीजन का है। इसका मतलब है जो 21% ऑक्सीजन है उसका प्रेशर ये बनता है। अब ये फिज़ा से आकर हमारे लंग्स तक आते हैं। जब लंग्स तक आ जाते हैं ये जाकर अल्विलाई के अंदर, ये लेक्चर हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि किस तरह अल्विलस तक जाता है, वहाँ पर किस तरह ये ब्लड के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो अभी मैंने हीमोग्लोबिन के अंदर समझाया। हीमोग्लोबिन तक जब जाते हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर 100 बन जाता है, लो हो जाती है। वजह क्या है, वजह यह है कि वहाँ पर ब्लड के अंदर डिफरेंट वाटर वेपर्स है, डिफरेंट गैसेस है, एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, 100 mm ऑफ मरकरी हो जाती है। अब ये कम क्यों हो जाती है, दूसरे गैसेस ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर क्या है, यानी ये एक आपके पास फुटबॉल है, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस आपने डाले हैं। इसमें ऑक्सीजन के कितने कंसंट्रेशन है ये उसका पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है वो उसका पार्शियल प्रेशर, यानी एक स्पेसिफिक गैस का कितना प्रेशर है स्पेसिफिक एरिया के ऊपर या पर यूनिट एरिया के ऊपर, इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर 100 बन जाता, 100 ये आरबीसी के अंदर आ रहे हैं। अब आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है। ये ब्लड की पिलरी जब आती है तो ये किधर जाएगी, यानी ये हर टिश्यू तक पहुंच जाती है। अब टिश्यू के अंदर अगर 60 mm ऑफ मरकरी से भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो तो ये बआसानी एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करके वो आकर इधर आ जाएगी। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए लेते हैं या दूसरे पर्पजेस के लिए लेते हैं, यानी वो इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात आ गई यहाँ पर। यानी यहाँ तक जब तुम्हारे टिश्यू तक आरबीसी आती है उसके अंदर हर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, वो आकर यहाँ पर रिलीज़ करते हैं और यहाँ पर जो ज़रूरत है वहाँ पर उसको दिया जाता है। अगर ये 60 से अबव हो फिर बासानी ये रिलीज़ नहीं करती, ये तकरीबन या एक रिलीज़ कर देगी या 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल रिलीज़ नहीं करती। जब 60 से भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये उसका यूनिट है, उससे भी कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अब इधर ये रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। एक और चीज़ भी बता दूँ, जब आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन आती है इसके साथ अटैच होती है उसके लिए एक एंजाइम्स की भी ज़रूरत है। उस एंजाइम्स का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में मिल गए हैं और अब इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन, ऑक्सी, और इसका कलर तकरीबन रेड होता है, इस वजह से हमारा ब्लड भी रेड दिखते हैं। अब जो ही यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इधर रिलीज़ होगी तो इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगी, इसका कलर हो जाएगा रेड पर्पल या ब्लूइश जैसी हो जाती है, तो इसको हम फिर कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही, वो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह इससे निकलता है, थ्रू डिफ्यूजन। इधर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर कम है। एक और चीज़ भी बता दूं, वापस इधर आता हूं। सपोज ये आपके लंग्स हैं,
लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती है कंपेयर टू आउटसाइड, तो इस वजह से गैसेस रश करके अंदर आती है। क्यों कम होती है इधर प्रेशर? ये बॉयज़ लॉ में आपने पढ़ा होगा, जब एरिया बड़ा हो गैसेस कम हो तो उधर प्रेशर कम पड़ जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उसके अंदर आपको डिटेल के साथ समझा दूंगा कि किस तरह वहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर कम हो जाती है। इसी तरह एक और हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, उसका नाम है मायोग्लोबिन। उसका भी इसी तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिंगल है, और सिंगल है 154 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन स्टोरिंग का काम करते हैं। सपोज़ ये तुम्हारे मसल्स है, बाइसिप है, यहाँ पर ये जो रेड मसल्स है ये ड्यू टू मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन हम स्टोर कर सकते हैं। जब हम स्टोर करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारे अंदर 20 mm ऑफ मरकरी से भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे सकती है। और ये स्टोर करने का कैपेसिटी भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल का रखते हैं। ख़ासकर जब तुम्हारी लड़ाई हो रही हो या तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे पास अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत लो हो जाती है। आप अपने मायोग्लोबिन से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बदले में तुम्हारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी जमा हो जाती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, तुम तक भी जाते हो। वो असल में मायोग्लोबिन से हम ले लेते हैं। या बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं या वेल है, ब्लू वेल जो नीचे जाती है, वो क्या करती है, उसके अंदर मसल्स ज़्यादा है, मसल्स के अंदर फिर मायोग्लोबिन ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करके नीचे चली जाती है, फिर कुछ मिनट तक वो अपने स्टोर्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकती है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर कभी कभार जो बीटा चेन है वो उसका आपने सिकल सेल एनीमिया के अंदर, जिसके ऊपर मेरा एक लेक्चर है, उसका जो अमीनो एसिड का चेन है उसमें नंबर 6 नंबर पर जो अमीनो एसिड है उधर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलाइन आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाता है, हारीनुमा बन जाती है इस तरह। तो इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या सिकल शेप है, द्रांति हारीनुमा। सिकल सेल एनीमिया मतलब इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, तो ऑक्सीजन की कमी को हम एनीमिया की बीमारी कहते हैं। ये जो है ये बीमारी के ऊपर मेरा अलग लेक्चर है। अगर आपका हीमोग्लोबिन इस तरह हो तो आपका ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अगर इस तरह बिल्कुल ग्लोब्यूलर शेप का हो तो बिल्कुल बासानी कर सकता है। 2 से 3% जो है ये डिज़ोल्व फॉर्म में है और प्लाज्मा के अंदर, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सा लेक्चर समझ आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस थोड़ा सा मुश्किल है, वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ जो ब्रीथिंग है वो भी हम अलग लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।